Hello and very good morning to all my dear students. Welcome to the beautiful channel Padhai Ka Kavach. Myself Tosif sir, and today we are going to discuss the exercise of a unit number 5, coal and petroleum. So let us start without wasting our time. Question number 1. What are the advantages of using CNG and LPG as fuels? CNG और LPG फ्यूल्स को इस्तेमाल करने के फ़ायदे कितने हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल, इट इज़ अ नॉन पॉल्यूटिंग फ्यूल बिकॉज इट इज़ अ इको फ्रेंडली. Second, the most important advantage, it is easy to store and transport. Means these are the types of fuel which is easy to transport and store inside the vessels. Third, CNG is used for power generation. Fourth, this fuels have more energy per unit volume. यानी कि कम मात्रा के अंदर इस्तेमाल करने के बावजूद भी इसके अंदर से ज़्यादा एनर्जी एक्सट्रैक्ट आपको मिल सकता है. LPG can be used directly for burning in homes and factories. Liquefied petroleum gas कि जिसको हम घरों और फैक्ट्री के अंदर डायरेक्टली बर्निंग के इस्तेमाल में ले सकते हैं. These are easily available and have affordable cost. इसकी उपलब्धि बहुत ही आसान और इसकी कोस्ट जो है वो बहुत ही अफोर्डेबल है. अफोर्डेबल का मतलब सामान्य इंसान खरीद सके उतनी. LPG एंड CNG हैव वर्चुअली नो ऐश पार्टिकल्स लेफ्ट आफ्टर बर्निंग. LPG और CNG के अंदर बर्न करने से कोई भी ऐश पार्टिकल्स यानी कि उसमें से जो छोटे छोटे वुड को बर्न करने के बाद, कोल को बर्न करने के बाद जो ऐश पार्टिकल्स बचते हैं वो आफ्टर द बर्निंग ऑफ CNG एंड LPG it will not remain. Question number 2. Name the petroleum product used for surfacing of roads. Bitumen basically जो हमने सीखा हुआ था इसके अंदर. Question number 3. Describe how coal is formed from dead vegetation. What is this process called? So let us try to understand again the process of coal making from the dead vegetation. So before millions of years ago, say for 300 million years ago, Earth had a dense forest and low-lying wetland areas. यानी कि पीछे जो नीचे के जो ह्यूमिडिटी वाले प्रदेश है वहाँ पे बहुत ही घने जंगल हुआ करते थे. Due to natural processes like flooding, this forest got buried under the soil. कुदरती प्रक्रियाओं के कारण और फ्लड यानी कि बाढ़ के कारण ये जंगल जो है वो ज़मीन के नीचे दब गए. As more soil deposited over them, they were compressed. जैसे हम जानते हैं कि सालों साल बीतते गए और जैसे जैसे साल बीतते जाते थे वैसे वैसे उस फॉरेस्ट और जंगल के ऊपर जो है वो ज़मीन का लेयर यानी कि सॉइल के लेयर्स बनते जाते थे और वो उसके नीचे दबते जाते थे. सो हमें मालूम है कि जैसे जैसे हम कोई चीज़ को कंप्रेस करते हैं तो वैसे वैसे उस चीज़ का तापमान भी बढ़ता रहता है और नीचे जैसे जैसे हम जाते जाते हैं तो टेम्परेचर तो बढ़ता ही है, लेकिन अर्थ का जो टेम्परेचर है वो भी साथ साथ में बढ़ता है. अंडर हाई प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर डेड प्लांट्स गॉट स्लोली कन्वर्टेड टू कोल. धीरे धीरे ज़्यादा दबाव और ज़्यादा तापमान के कारण जो ये प्लांट्स है वो धीरे धीरे कोल में कन्वर्ट होने लगे. As coal contains mainly carbon, the slow process of conversion of dead vegetation into coal is called carbonization. कोल के अंदर मेजर कंस्टिट्यूट जो है वो कार्बन होता है और इसी डेड वेजिटेशन की यानी कि जो मृतप्राय वनस्पति है उसका कन्वर्जन कोल के अंदर होने की प्रोसेस को कहा जाता है कार्बोनाइजेशन. So this is the process of making coal or the formation of coal by dead vegetation, from dead vegetation. Question number 4th. Fill in the blanks. A. Fossil fuel are blank blank and blank. Fossil fuels के अंदर किसका जो है समावेश होता है? तो बेसिकली जो चैप्टर का नाम है coal and petroleum, these are the fossil fuels, and the another fossil fuel is natural gas. Second, process of separation of different constituents from petroleum is called
द प्रोसेस इज कॉल्ड रिफाइनिंग, यानी कि पेट्रोलियम के अंदर से जो अलग अलग उसके सब कंस्टिट्यूट मिलते हैं, उस कंस्टिट्यूट को निकालने की प्रोसेस को रिफाइनिंग कहा जाता है। लीस्ट पॉल्यूटिंग फ्यूल फॉर व्हीकल इज ब्लैंक, CNG, compressed natural gas, as we already discussed this in a question number 1. Question number 5th. Tick true false against the following statement. Fossil fuels can be made in the laboratory. Whenever we are in a content or a textbook content, I already told you in one of my lectures that it is impossible to generate the condition exactly similar to the condition inside the soil, यानी कि ज़मीन के अंदर जो सॉइल की कंडीशन है वो कंडीशन जनरेट कर पाना इम्पॉसिबल है, क्योंकि उतना दबाव और उतना टेम्परेचर हम लेबोरेटरी के अंदर क्रिएट नहीं कर सकते. सो इट कैन नॉट बी पॉसिबल टू मेक अ फॉसिल फ्यूल्स इनसाइड द लेबोरेटरी. सो इट इज़ अ फॉल्स स्टेटमेंट. CNG इज़ मोर पॉल्यूटिंग फ्यूल देन पेट्रोल. CNG जो है वो ज़्यादा प्रदूषण पैदा करने वाला फ्यूल है पेट्रोल से. सो बेसिकली हमने इसके फ़ायदे में ही देखा CNG के, कि CNG जो है वो फ़ायदेमंद फ्यूल है पेट्रोल से भी ज़्यादा. इट इज़ अ मोर, पेट्रोल से भी ज़्यादा फ़ायदेमंद इसलिए है क्योंकि वो पॉल्यूशन जनरेट नहीं करता. सो दैट इज़ वाई CNG is less polluting fuel than the petrol. So this given statement is false. Third, coke is almost pure form of carbon. कोक जो है वो कार्बन का प्योर फॉर्म है. इट इज ट्रू. सबसे प्योर फॉर्म जो है कार्बन का वो कोक होता है. कोल के अंदर तो इम्प्योरिटीज काफ़ी होती है. डी, कोल टार इज अ मिक्सचर ऑफ वेरियस सब्सटेंसेस. कोल टार अलग अलग सब्सटेंसेस का मिक्सचर है. जैसे हमने देखा था कि कोल टार के अंदर 200 से भी ज़्यादा सब्सटेंसेस इंक्लूडेड होते हैं. सो दैट इज़ वाई इट इज़ अ ट्रू स्टेटमेंट. Kerosene is not a fossil fuel. It is wrong statement. Basically wrong, because kerosene is a refining product from the petroleum, and petroleum is a fossil fuel. So that is why kerosene also a fossil fuel. It is a false statement. Question number 6. Explain why fossil fuels are exhaustible natural resources. समझाइए क्यों fossil fuels जो है वो नाशप्राय कुदरती संसाधन है, यानी कि जो खत्म होने वाले कुदरती संसाधन है. Fossil fuels are formed over a period of million of years by the action of high temperature and high pressure on the remains of dead plants and animals. Fossil fuel जो है वो लाखों वर्षों की प्रक्रियाओं के बाद ज़्यादा तापमान और ज़्यादा दबाव के कारण जो डेड प्लांट्स और एनिमल्स होते हैं उसमें से बनते हैं. These fossil fuels are exhaustible natural resources because if these are exhausted by human activities, cannot be recreated in a short period of time. तो जैसे कि इनके बनने की प्रोसेस में ही लाखों साल लगते हैं, तो अभी भाई एक बार वो हम ख़त्म कर दे, मतलब एक बार उसका इस्तेमाल कर दे, तो वो छोटा सा कोल का टुकड़ा है या छोटा सा ग्लास भर के पेट्रोल है, तो वो क्रिएट होने में भी लाखों साल लगेंगे. और हमें तो मालूम है कि हमारा जीवन तो सिर्फ 60-70 सालों तक या तो बढ़ चढ़ के 100 सालों तक होता है. ठीक है, समझे? सो दैट इज़ वाई इट इज़ अ एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज, बिकॉज आवर फर्दर जनरेशंस आर नॉट एबल टू यूटिलाइज दैट अमाउंट ऑफ फॉसिल फ्यूल्स because it is a exhaustible natural resources. So we should use this kind of resources in a certain manner, okay, for our future generations. Question number 7. Describe characteristics and uses of coke. कोक की लाक्षणिकताएं और उसके उपयोग लिखिए. कोक जो है वो सबसे पहले तो टफ और पोरस ब्लैक सब्सटेंस होता है, यानी कि काले कलर का एक पदार्थ जो काफ़ी दिखाव में काला और टफ होता है. इट इज़ प्रोड्यूस्ड बाय डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ कोल, यानी कि कोल के शुद्धिकरण के बाद जो प्रोडक्ट हमें मिलती है वो कोक होती है. This is the characteristics of
coke. Now we will discuss the uses of coke. It is a almost purest form of carbon, so wherever the carbon is necessary we can utilize this coke at that place. It is used as a domestic as well as an industrial fuel in stoves and furnaces. उद्योगों के अंदर फ्यूल की तरह यानी कि एक ईंधन की तरह इसका स्टव और फर्नेसेस के अंदर इस्तेमाल किया जा रहा है. थर्ड, इट गिव्स लिटिल और नो स्मोक. इसके कंबंशन से, इसके दहन से धुआं उत्पन्न नहीं होता है. इट इज यूज्ड इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ स्टील. स्टील के मैन्युफैक्चरिंग में इसका इस्तेमाल ज़्यादातर होता है. इट इज़ यूज्ड फॉर एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स. मेटल को एक्सट्रैक्ट करने के लिए इसका इस्तेमाल ज़्यादातर होता है. इट कैन बी यूज टू मेक फ्यूल गैसेस. सो फ्रॉम द कोक वी कैन ऑब्टेन द फ्यूल गैस लाइक कोल गैस. क्वेश्चन नंबर 8, एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ पेट्रोलियम. पेट्रोलियम के फॉर्म होने की प्रोसेस क्या है, आइए चलिए डिस्कस करते हैं. सो एज वी नो दैट द कोल इज फॉर्म्ड बाय द decomposition of the dead vegetation after million of years, but petroleum is lie inside the sea. So petroleum was formed from organism living in the sea. So coal is made up from the dense forest decaying or decomposition, and the petroleum is obtained from the living organism in the sea after the million of years process. As this organism dies, their bodies settle down at the bottom of the sea and got covered with sand and clay. क्योंकि समंदर के अंदर रेत और मिट्टी ज़्यादातर होती है, तो जब भी ये जीव दरिया के अंदर जो जीव होते हैं वो मर जाते हैं, तो उसका जो पूरा शरीर है वो समंदर के नीचे सेटल डाउन हो जाता है और उसके ऊपर मिट्टी और रेत का ढेर बन जाता है. In the absence of air, high pressure and high temperature for over million of years transform the dead organisms into petroleum and natural gas. लाखों सालों के बाद हवा के अभाव में, ज़्यादा तापमान और दबाव के अंदर लाखों सालों बाद ये जो मरे हुए ऑर्गेनिज्म है उसका कन्वर्जन पेट्रोलियम और नेचुरल गैस के अंदर हो जाता है. द पेट्रोलियम डिपॉजिट्स आर यूजुअली फाउंड मिक्स्ड विद सॉल्ट वाटर. पेट्रोलियम डिपॉजिट यानी कि पेट्रोलियम के जो अवशेष है वो जनरली सॉल्ट वाटर के साथ मिक्स होते हैं. द पेट्रोलियम इज लाइटर देन सॉल्ट वाटर एंड हैंस फ्लोट्स ओवर इट. हमें मालूम है कि पानी से जो इसकी डेंसिटी है पेट्रोलियम की वो कम है, सो दैट इज वाई इट विल फ्लोट ओवर द वाटर. ओके, चलिए. सो दिस इज द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ पेट्रोलियम. क्वेश्चन नंबर 9, इसमें आपको एक टेबल दिया गया है कि जिसके अंदर शॉर्टेज दिखाई गई है इलेक्ट्रिसिटी की या तो पावर जनरेशन की 1991 से लेके 1997 तक, यानी कि 8 साल के अंदर जो शॉर्टेज हुई है उसके 7 साल के अंदर जो शॉर्टेज हुई वो दिखाई गई है और उसका आपको ग्राफ बनाना है. एंड इट इज़ ऑलरेडी गिवन दैट शॉर्टेज परसेंटेज वी विल टेक इट ऑन अ वाई एक्सिस एंड द ईयर ऑन द एक्स एक्सिस. यानी कि हमारा जो ग्राफ बनेगा उस ग्राफ में जो ये वाई एक्सिस होगी उसके ऊपर हम प्लॉट करेंगे ईयर्स. ठीक है, यानी कि 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97. सॉरी, शॉर्टेज परसेंटेज, माय मिस्टेक. जो आपका ग्राफ बनेगा उसमें वाई एक्सिस के ऊपर हम दिखाएंगे शॉर्टेज, यानी कि 0 से लेके 12% तक यहाँ हम लेंगे. ठीक है, और उसके बीच में शॉर्टेजेस ईयर वाइज आ जाएगी. और जो एक्स एक्सिस है यानी कि हॉरिजॉन्टल एक्सिस उसके ऊपर हम ईयर लेंगे 1991 से लेके 97 तक. सो योर ग्राफ विल बी लुक्स लाइक इन दिस मैनर. ठीक है, 1991 में जो शॉर्टेज थी वो नियर अबाउट 7.9% थी, 92 में उससे घटी, फिर बढ़ी, फिर घटी, उसके बाद बढ़ने लगी. सो इफ यू कनेक्ट दिस डॉट्स यू विल गेट दिस काइंड ऑफ ग्राफ. इट इज़ वेरी इजी. Try by yourself to draw this graph. Okay, so here the exercise ends. Thank you my dear students. We will meet in our next lecture with new unit. Thank you.